गाँव के अंदर पीछे खड़ो भी वही रहने का ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ उधर पीछे से ऊपर था रास्ता पीछे से ऊपर नहीं आई हाँ नहीं थोड़ा जा सकते हैं थोड़ा ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮುಂದ್ಬಿಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವರನ್ನು ಮುಂದ್ಬಿಡೆ इधर से आ सकते हाँ इधर से हाँ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಶರ್ಟ್ ಬರೀ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಶರ್ಟ್ ಬರೀ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶರ್ಟ್ ಬರೀ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಹಾಂ सर एवरीवन शर्ट बनी नेक्स्ट टू रिमूव हाँ ओके सभी को एक बार बोल दीजिए क्योंकि पता नहीं रहेगा ना ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೈವ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೀರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೈವ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು वाला आता है इधर सही थोड़ा एक साइड
ಎಲ್ಲಿಂಟಿದ್ದೀರಿ? आदमी रिकॉर्डिंग करे तो नहीं क्या रिकॉर्डिंग है कि नहीं? पानी क्या करेंगे ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚಾನೆಲ್. ಹಾಂ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? 4 ಜನ ಇಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ಗೆ. ಹಾಂ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹಾಂ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿ ಅವರು हाँ वो वही अभी यहाँ के पीठाधीश्वर और स्वामी जी है ना, आगे जाते हैं, आप सब लोग उनको फॉलो करना है. हाँ 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 ಒಬ್ಬ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವಿಶೇಷ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾಗರಣ ಉತ್ಸವ. ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆರಂಭ ದೀಪ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಗೇಟಿನಿಂದ ಬರೋದು? ಯಾವ ಗೇಟಿನಿಂದ ಬರೋದು ಒಳಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದನೇ ರಾಜಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. नहीं हाँ नहीं कोई बात नहीं अभी ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರಿ ಈಗ ಫುಲ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು
ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಗ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾಗರಣೋತ್ಸವ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ? ಎರಡಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ದೀಪಾಲಂಕಾರ. ಅಕ್ಷಯ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ. ದೇವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾಗರಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ದೀಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ಥಾ ಚಾನಲ್.
ವೀರಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಜೈದಾರ್ ಬೊಮ್ಮೆ. ಸಹಸ್ರ ದೀಪಗಳಿಂದ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ.
आप इधर
ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಿದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಯೋಗದ ಹಿಮಾಲಯ ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಗಂಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಈ ಒಂದು ರಾಜಾಂಗಣದ ಪವಿತ್ರ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಸಾಧು ಸಂತರ ದಿವ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರ ಕನಸವನ್ನು ನನಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಋಷಿ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಈ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ದಿವಾಂಗರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯಜಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯಜಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಧು ಸಂತರು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಓಜಸ್ವಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ नमस्कारಗಳು. आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण मठ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का बहुत बड़ा तीर्थ है,
यहाँ परम श्रद्धेय पूज्य वंदनीय हमारे इस सनातन धर्म के गौरव और हमारे ऋषि संस्कृति के प्रतिनिधि प्रतिरूप हमारे उस सनातन के विग्रह रूप श्रद्धेय श्री श्री गुणेंद्र स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वाद और अनुग्रह, जिन्होंने भारत से लेकर के पूरे वैश्विक धरातल पर हमारे सनातन धर्म का गौरववर्धन किया है, उनकी सन्निधि में हम यहाँ भगवान के आराधन के बाद अपने योग साधन के लिए आए। प्रथम हम पूज्य स्वामी जी को पुनः बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और पूज्य स्वामी जी के सन्यास जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनको पुनः अभिनंदन। और यह सुयोग है कि लगभग 13 वर्ष की आयु में पूज्य स्वामी जी महाराज ने भगवान के विधान के अनुरूप इस संन्यास धर्म को धारण किया और संन्यास धर्म को धारण करके यहाँ श्री कृष्ण मठ में 8 मठों की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। और जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी महाराज जी ने जो हमारी सनातन संस्कृति का मूल सिद्धांत है, उसमें उस द्वैत सिद्धांत अर्थात ईश्वर परमात्मा ब्रह्म वह हमारा आराध्य है और हम उसके उपासक हैं। हमारे यहाँ पर द्वैत अद्वैत त्रैत कई प्रकार के वैचारिक अधिष्ठान हैं और उसमें एकदम जो सबको समझ में आता है ऐसा व्यावहारिक और पारमार्थिक सिद्धांत जिन महापुरुष ने दिया, ऐसे इस युग के एक युग पुरुष और हमारी सनातन चेतना के बहुत बड़े शिखर महापुरुष श्री मध्वाचार्य जी महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। और आज पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भोर की उपासना में आपको आना है, तो हम तो दौड़े दौड़े आ गए। हम भोर में सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते महाराज और फिर अपना पूजा आराधन करके फिर एक बार सुबह सुबह रनिंग करते। तो आज रनिंग यही सी शहर से करके आए, तो सुबह हमको पसीना आ रहा था, तो पूछ रही थी ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये रोज होना चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री ने भी अपने तन मन को बहुत साधा है, हमको आशीर्वाद दे के फिर अपना जो नित्य का अनुष्ठान है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये श्री कृष्ण मठ में 8 मठों का पर्याय आता है, उसमें पूज्य महाराज श्री का पर्याय है और वो उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर रहे हैं। अब तक सर्वाधिक पर्याय पूज्य स्वामी पेजावर स्वामी जी महाराज जी को 5 पर्याय मिले। चौथे पर्याय महाराज जी का भी चल रहा है, 5वां के लिए हम दोबारा आए। तो हमने महाराज जी से कहा कि थोड़ा प्राणायाम हमारे साथ करेंगे, हम इनको शीर्षासन तो नहीं कराएंगे लेकिन 5 प्राणायाम महाराज जी, चलो सब करो। रेचक और पूरा करना, इसको भस्त्रिका प्राणायाम से हम कहते हैं महाराज जी। ಅವರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ क्योंकि हमारा अभ्यास हो गया, इसलिए महाराज जी हम वेग पूर्वक भी इसको ऐसे करते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता जो आपने 18 अध्याय यहाँ पर अंकित करवाया है और 18 सोपान चढ़ करके हम पूरा उसका दिग्दर्शन किया, हम पूरा 18 अध्याय करते करते भस्त्रिका कर लें। तो और इससे हमारा पंचभौतिक देह, पंच प्राण, पंच उपप्राण
पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों सहित अंतःकरण चतुष्ट, अष्ट चक्र, नवद्वार और 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां जो उपनिषदों में कही है, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं एक ही भस्त्रिका से। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति मुद्रा या अपान मुद्रा में तो आपको हमें शतायु करंट देखना है। तो आप इसलिए रोज 5 मिनट भस्त्रिका आप करेंगे तो हम अत्यंत प्रसन्न होंगे कि हमारे स्वामी जी बड़े ऐसे ही इसी रूप में 100 साल तक हम आपको देखें। तो ये भस्त्रिका ऐसे, और श्रीमद् भगवद गीता में जिसे कहा एक योगी का ऊर्जा कैसा होता है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। एक एक सेल में महाराज जी विदाउट एनी वर्क, कोई विशेष साधन के बिना एक क्षण में 1 लाख एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज, गतिविधियां होती है। विज्ञान का सिद्धांत, साइंस अभी ऐसा उस निष्कर्ष पर पहुंचा है। लेकिन जो योगी होता है उसकी तो 100 गुना 1000 गुना शक्ति बढ़ जाती है। एक एक सेल के अंदर जब ऐसे 1 लाख से लेकर 10 लाख 1 करोड़ के अंदर ऊर्जा की गतिविधियां निष्पादित होंगी तो ये दिवि सूर्य सहस्र से घटित होगा। ऐसा ऊर्जा पिंड हो जाता है, वह ऊर्जा से दीप्यमान हो जाता है। ऐसा ये भस्त्रिका है। इसलिए यह मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कैंसर जैसे, कैंसर से भी हमने रिवर्स किया है। तो ये दूसरा कपालभाति, ये तो महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी 5 मिनट अवश्य करना है। तो वक्त अधिक हो तो अधिक कर लिया। इसमें भी मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का जागरण, आरोहण। योग तो ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, सत्व में अधिष्ठित होकर के ऊर्ध्व आरोहण ये जीवन का ध्येय है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये 5 मिनट ये महाराज जी कम से कम। फिर अगली बार आऊंगा तभी अगला कराऊंगा, ये इस बार का टारगेट नहीं है। ये बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध के साथ। फिर अनुलोम विलोम तो अवश्य करना, क्योंकि यह हमारे पूरे नाड़ी तंत्र को शुद्ध कर देता है। 2 ही योग के मुख्य प्रयोजन है, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। जो भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीजेंस, नेगेटिव एनर्जी है हम उसको रिलीज करें। तथा क्षीयते प्रकाश, दिस इज द पर्पज ऑफ प्राणायाम योग से। तो अनुलोम विलोम ये तो महाराज जी रोज करते ही हैं। सब संध्या वंदना में भी हम रोज करते हैं, ये तो हमारी दिनचर्या का। बाई से लिया, दाई से छोड़ा, दाई से लिया, बाई से छोड़ा। ऐसे निरंतरता पूर्वक। अथ योगानुशासन, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आश्रिता दृढ़ भूमि। अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक दीर्घ काल निरंतरता सत्कार के साथ जब योग आश्रित होता है तो उससे हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, चित्त शुद्ध
उद्धव हो जाता है। तो ये भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम ये तो मैंडेटरी हम सबको प्रतिदिन कराते हैं। फिर अब आगे का विधान हम सबके साथ करेंगे। आज हम और का आशीर्वाद पूज्य महाराज शिष्य लेकर के फिर आपके साथ संवाद आगे बढ़ाएंगे। कल हम यहाँ थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने कल पूरा दर्शन कराया। पहले भी हम आए थे तब भी पूरा दर्शन हुआ, लेकिन कल दर्शन के साथ पूरा एक अलग प्रकार की अनुभूति आपने हमको करवाई। और इसके लिए पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, हमारे सभी वरिष्ठ सन्यासी, पूज्य भाई बहन और पूज्य आचार्य श्री भी थोड़ी देर में आगमन होगा, सब हम अभिभूत हैं, कृतज्ञ हैं। एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से पूज्य महाराज श्री को पुनः प्रणाम वंदन करते हैं। और पूज्य महाराज श्री के जो परम शिष्य उत्तराधिकारी है परम पूज्य सुशीन्द्र तीर्थ स्वामी जी महाराज, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और हमारे एम नाग राज आचार्य जी और एम प्रसन्न आचार्य जी, सभी हमारे पूज्य महापुरुषों को प्रणाम करके पूज्य महाराज श्री अपने आशीर्वादों से रोज महाराज जी लगभग 5 कोटि जन कम से कम हमारे साथ लाइव योगा करते हैं। अभी आस्था चैनल पर इसका सीधा प्रसारण, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, पूरा सोशल मीडिया पर सुबह ये नित्य नियम है हमारा, नित्य प्रतिका। और इसके बाद इंडिया टीवी पर होता है 8 बजे से। तो ऐसे एक प्रवाह है। हम भी, हमारा भी योग का पर्याय 50 साल से चल रहा है। उसका स्वर्ण उत्सव चल रहा है। और हम जो है, हमको आपकी तरह 13 वर्ष में ऐसे समर्थ गुरु नहीं मिले थे। गांव में पैदा हुए, हमको तो पता ही नहीं था ये वेद धर्म सनातन धर्म के जो तत्व है, लेकिन कोई भगवान का विधान था। हम फिर महर्षि दयानंद की प्रेरणा से गुरुकुल में आए, फिर अष्टाध्यायी महाभाष्य और पूरा वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र परंपरा से हम गुरुकुल में पढ़े और आपके चरणों तक पहुंच गए। तो आप सबको अपना आशीर्वाद दे करके कृतार्थ पूज्य महाराज। संस्कृत भाषायां वदामः। हमारे पूज्य महाराज श्री हिंदी भी जानते हैं और संस्कृत भाषा तो ते यथा वदन्ति वयं सर्वं सर्वेपि गौरवम् अनुभवामः सर्वेपि संस्कृतम् अवगच्छन्ति। यतोहि संस्कृत भाषा तो अस्माकं संस्कृतेः भाषा अस्ति। अद्य श्रीकृष्णस्य महान् सन्तोषः सञ्जातः। योगेश्वर श्रीकृष्णसन्निधौ योगप्रचारकाः योगगुरवः श्रीरामदेवमहोदयाः आगत्य योगसमर्पणं कृतवन्तः। अतः योगेश्वरः श्रीकृष्णः अत्यन्तं सन्तुष्टः। श्रीरामदेवमहोदयः पार्थ इव अर्जुन इव समग्रजगति सञ्चारं कृत्वा त्रिलोकपतिरिव योगपतिः सन्यात्। अतः भगवद्गीतायाः अन्तिमश्लोकस्य नूतनः अर्थः अस्माभिः दृष्टः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थः रामदेवमहाभावः, तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। श्रीकृष्णस्य परिपूर्ण अनुग्रहः बाबा रामदेवमहोदये वर्तते इति वयम् अत्यन्तं विश्वासं प्रकटयामः। योग विभूतिं जगति परिणामरूपेण प्रभावीरूपेण साधनतया अस्माभिः रामदेवमहोदयैः कृतः वर्तते। न केवलं
भाष्ययोगः मनोयोगश्च साधितः समत्वं योग उच्यते। तादृश सर्वयोगप्रकाराणां विशेषरूपेण जागृतिः समग्रजगति अर्जुनरूपेण यत् विजयः कृतः तादृशविजयः शाश्वतः भवतु, शाश्वतकीर्तिः भवतु, योगसम्पत् सर्वत्र प्रसृता भवतु। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम्। श्रीकृष्णः बाबा रामदेव महोदयस्य हृदये स्थित्वा एतादृश महासाधनं करोतु इति वयम् अस्मिन् सन्दर्भे श्रीकृष्णमुख्यप्राणसन्निधौ प्रार्थनां कृत्वा तैः साकम् अद्य योग आचरणमपि कर्तुं वयम् अत्यन्तं सन्तुष्टाः। अस्माकं पर्यायमध्ये पुनरपि अत्र बाबा रामदेवः आगच्छतु, समग्रशिष्याणां शिष्यैः साकम् आगत्य पुनरपि श्रीकृष्णसन्निधौ योगसमर्पणं कुर्वन्तु इति आशास्य विरमामि। वयं सर्वे अनुकृताः स्मः। प्रतिदिनं वयं दैवीसम्पदम् आश्रित्य यदा यदा योगशीलः भवति तदापि अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितेः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः दया भूतेशलो लुप्त्वं मार्दवं धीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य। यथा भवद्भिः निगदितं दैवी सम्पदम् आश्रित्यैव योगः भवेत्। अस्माकं सर्वेपि सन्यासिनः पतञ्जलि योगपीठस्य सर्वेपि कर्मयोगिनः दैवी सम्पदाम् आश्रित्य एव सर्वे सर्वानुष्ठानं कुर्वन्ति इति भवतां चरणेषु प्रार्थनां कुर्मः। भवन्तः आशीर्वादं प्रयच्छन्तु। एषा दैवी सम्पत् सर्वेषां योगिनां जीवने आचरणे आगच्छेत् इति भवन्तः अग्रे अधुना यदपि भवताम् आध्यात्मिकम् अनुष्ठानम् अधिकं वर्तते तत् भवन्तः विधायन्तु। पुनः विश्वविद्यालयस्य या अग्रे व्यवस्था अस्ति तदा तत्र योगः तथा भगवद्गीता एतत् योगः तथा भगवद्गीता उभयस्य प्रचारः विशेषरूपेण क्रियते। भगवद्गीतां विना योगस्य तत्र प्रस्तुतिः। अतः गीता योगः अत्र सर्वत्र प्रचारः कृतः। वयम् एकस्मिन्नेव मार्गे स्मः। वयमपि भगवद्गीताप्रचारं कोटिगीतालेखनं गीतामन्दिरनिर्माणम् इति अस्माकं जीवनस्य उद्देशः भगवद्गीताप्रचारः। रामदेवमहोदयस्य उद्देशः योगप्रचारः। योगशास्त्रं भगवद्गीता एकमेव वर्तते। अतः योगेश्वरः कृष्णः अस्माकं विशेष अनुग्रहं कृत्वा योगस्य भगवद्गीतायाश्च विशेषप्रचारं कारयतु इति जाने। चलो बैठो। तो आज
भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी की सन्निधि में श्री कृष्ण मठ, वैसे जो हमारी भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत से अवगत हैं उनके लिए तो ये नया विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने ज़्यादा भौतिकवादी चिंतन में चले गए कि बहुतों को शायद श्री कृष्ण मठ की ये जो बहुत ही हमारी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, जितना मथुरा में, वृंदावन में और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के जो शक्तिपीठ है उनका वहाँ पर प्रत्यक्ष अनुग्रह है, वैसा ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अनुग्रह और विग्रह यहाँ उडुपी में श्री कृष्ण मठ में है और वहाँ उनकी सन्निधि में हम योग कर रहे हैं। तो जो पीठ होती है, सिद्ध पीठ होती है, उनकी ऊर्जा को यदि उस ऊर्जा के साथ एकात्म हो जाता है तो जीवन के रूपांतरण के लिए बहुत बड़ा ये महात्म्य है। तो आज हम जब आए तो कहा कि जब आ ही रहे हैं तो थोड़ा सा योगाभ्यास सबके साथ हो जाए। तो चलो, अभी हम जैसे पूज्य महाराज श्री से कह रहे थे, नियम से, सामान्य गति से मध्यम गति से, तीव्र गति तो अपवाद रूप में ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि तीव्र गति के लिए बहुत बड़े अभ्यास की अपेक्षा है। और जब तीव्र गति से करते हैं तो फेस, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा पूरा बॉडी का अलाइनमेंट वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना? इतना ना हो पाए तो इतना अवश्य है। एक नियम से, हम तो रनिंग भी करते हैं तो भस्त्रिका के साथ करते हैं। रनिंग विद भस्त्रिका, रनिंग विद कपालभाति। भस्त्रिका और कपालभाति दोनों ही हो जाते हैं। और जो वॉकिंग करते हैं उस समय तो अनुलोम विलोम भी होता है। ये तो हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। आइए सब अनुलोम विलोम करते हैं। मैं कुछ दिनों से निरंतर आह्वान कर रहा, यदि हम मात्र 2 काम करना शुरू करें, योग करें और कराएं। योग करना और कराना यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, हमारे गीता धर्म का, हमारे कृष्ण धर्म का, राम धर्म का, शिव धर्म का, कोई भी शब्द प्रयोग करो, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, ऐसे सब करें। ये हमारे सनातन धर्म, वेद धर्म, मन का गीता धर्म, हमारे औपनिषद धर्म का, सनातन धर्म के शाश्वत धर्म का, सिद्धांत का, साधन का मूल है योग करना और कराना। निरंतर 10-15 मिनट निरंतरता के साथ।
ऐसे योग करना और कराना ये बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा अनुष्ठान, आंदोलन प्रतिदिन पतंजलि की ओर से चलता है। हमारे बहुत सारे पूज्य सन्यासियों को इसी सेवा में हमने नियोजित किया हुआ है। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, हमारे और भी बहुत से पूज्य सन्यासियों को, पूज्या बड़ी दीदी देवप्रिया जी, देववाणी जी, देव गरिमा जी आदि, इसी सेवा में हमने सबको नियोजित किया हुआ है। योग सेवा से मानव सेवा, भगवत सेवा, राष्ट्र सेवा, सनातन की सेवा, पूरे अस्तित्व की सेवा। अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ, बिना विराम के, जब निरंतर लगातार कीजिए, जब ये निरंतर अनुलोम विलोम घटित होता है तो अपने आप ही एक सहज दिव्य रूपांतर, जिन 5 शब्दों का मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, when we are doing yoga properly, we are doing सूर्य नमस्कार, different postures, different yogic exercise, breathing exercise, meditation. When we are doing yoga properly, then we are achieving complete expression, not only physical, mental, emotional, spiritual, universal expression. ये शरीर तो इस पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। Our body is a replica of this universe. इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इस पिंड में, उनको जागृत करने के लिए उस पुरुषार्थ के प्रकल्प पर्याय जब योग पूरा करते हैं तो पूरा अभिव्यक्तिकरण होता है जीवन का। मैंने बार बार कहा है, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ अवर लाइफ, अल्टीमेट यूटिलाइजेशन, अल्टीमेट अचीवमेंट एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अवर लाइफ इज योगा एंड कर्म। Do yoga and karma yoga and achieve the whole things. What is our ambition, what is our desire, and the ultimate demand of all souls is complete health, eternal peace, unlimited happiness, joy, wisdom, victory. हर एक जीव की मूलभूत अभिक्षा, मूलभूत मांग है, हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय और अपने भीतर सन्निहित अनंत शक्तियों का जागरण योग से सहज हो जाता है। तो ऐसे निरंतरता के साथ यह अनुलोम विलोम आप लगातार कीजिए। हमारी श्रद्धामयी बहन सुजाता जी, देववाणी जी और हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी और भंवरलाल जी इधर बाई तरफ दाई बाएं आ जाएंगे, थोड़ा मेरे साथ साथ प्राणायाम करेंगे। मुझे तो प्राणायाम करना भी है और कहना भी है। सुजाता जी भी दिख रही है, कहाँ गए? आज राइट साइड में सुजाता जी और देववाणी जी आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में हमारे परमार्थ देव जी कहीं सेवा में लगे हों तो लगे रहने। तो हाँ, ये तो यही करना।
कलावती माता जी भी आ जाएगी। ये बहुत विदुषी बहन है हमारी और बहुत सेवा करते हैं। कलावती जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। देवानी जी आगे बैठ जाएंगी, कलावती जी और सुजाता जी। सुखासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में ऐसे ही बैठ करके हम निरंतरता पूर्वक लगातार अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम हमारी बहनें करेंगी। एक इधर आ जाओ कलावती जी, तो बैठ के करना ही है, प्राणायाम ही करना है। हाँ बैठो महात्मा जी, आप कपाल भाती करो दोनों। कपाल भाती अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ करो। इसको मैं कहता हूं अखंड योगाभ्यास, बिना रुके। जिनका अभ्यास है वो 5 मिनट बाह्य प्राणायाम दिखा दिया। अनुलोम विलोम करो देववाणी जी आप। ऐसे निरंतरता के साथ योग निष्पादित हो, अखंड योग। जब निरंतरता के साथ योग निष्पादित होता है तो मैं ये 5 शब्द रोज बोलता हूं। कंप्लीट एक्सप्रेशन। आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, यूनिवर्सल। जीवन पूरा अभिव्यक्त होता है योग से। जीवनस्य आत्मनः अभिव्यक्तीकरणं भवति योगेन। 90 से 99% शक्ति हमारी प्रसुप्त होती है, इससे उद्बुद्ध हो जाती है, जागृत हो जाती है। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और जो कर सके वायु प्राणायाम। निरंतरता के साथ बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता बनेंगे। तो मैं 5 शब्द पहले बोल देता हूं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। एक सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का, जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, आरएनए का, डीएनए का, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट एक्सप्रेशन। राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन नहीं होगा तो रॉन्ग डायरेक्शन में जो एक्सप्रेशन होगा उसी को कहते हैं जेनेटिक डिजीज। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा then your expression will be in wrong side, and this is very dangerous for us, for our life. See, a biggest threat for our life. संसार में यही हो रहा है। लोग योग नहीं कर रहे, कह रहे जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक स्ट्रेस, डिप्रेशन। रोगों के 2 ही कारण हैं, एक आंतरिक कारण और दूसरे को कहा जाता आगंतुक कारण। बाहर की परिस्थितियां कारण बन जाती है। 2 ही कारण। वन इज इंटरनल वीकनेस, आंतरिक दौर्बल्य, और दूसरा आगंतुक कारण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पॉल्यूशन, रेडिएशन, एडल्टेशन। So many problems we are facing outside, in environment, in food, in thought process, in society. बहुत तरह की प्रॉब्लम्स। वो सब बाह्य कारण या आंतरिक कारण उन्हीं को रोगग्रस्त करते हैं जो निर्बल है। इसलिए वेद में कहा बलम उपास व योगम उपास बनाय महात्मा बल हिने न।
अभी भी लगातार कीजिए। इसलिए मैंने हमारे पूज्य सन्यासियों को, श्रद्धामयी बहनों को आपके सामने इसलिए रख दिया कि आप साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे करना भी और कहना भी। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस। वात पित्त का एनाबलिज्म, मेटाबॉलिज्म का संतुलन का हो, मर्यादा का हो। प्रकृति परमेश्वर ने विधान को ऐसा रचा है, यदि हम उसमें अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप न करें। कल भोर में हम अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप की बात कर रहे थे। पूज्य आचार्य बादशाह जी महाराज जी ने कहा ये सारा अस्तित्व ऐसा रचा बसा है कि यदि हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अविवेकपूर्ण जो हस्तक्षेप करते हैं प्रकृति पर्यावरण में, उसी से ही सारा विध्वंस हो रहा है, विघटन हो रहा है, पतन हो रहा है। तो बैलेंस, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्न बुद्धि युक्त जाति वे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय उच्यस्व योग कर्म कौशल। अयम तो परमः धर्म यत् योगेन आत्मदर्शनम आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च सर्वं निष्पद्यते योगेन। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीवन में हर समय संतुलन। बैलेंस इज लाइफ। और इम्बैलेंस, बहुत तरह का इम्बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंस, यही तो हमारे जीवन के विघटनकारी तत्व है। थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। किसी कारण से डीजनरेट हुई हमारी शक्ति, हमारा स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सेल्स, आंखें, कान आदि डीजनरेट हुई है, तो सब कुछ रिजुविनेट हो जाएगा, रिजुविनेट हो जाएगा। Rejuvenation बहुत बड़ा प्रोसेस है। In modern medical science, there is no way for rejuvenation. They are providing synthetic drugs for control of disease, but they have no solution. They have no way for rejuvenation. In yoga, in Ayurveda, in Panchakarma, Shatkarma, we are providing the integrated solution for rejuvenation. So, complete expression, complete balance, complete rejuvenation. We can rejuvenate our liver cells, kidney cells, pancreatic cells, lung cells, thyroid cells, heart cells, brain cells, skin cells, bone cells. We can rejuvenate our reproductive system, skeletal circulatory system. This is the power of yoga. This is the capacity of yoga. ये बड़ा जबरदस्त है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, एंड फोर्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर। सामान्य जीवन तो सब जी रहे हैं, योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, वी आर अचीविंग लाइफ डिवाइन। This is the ultimate goal of yoga, achievement of life divine, complete divine transformation, transformation of our body, दिव्य देह, दिव्य इंद्रिया, दिव्य मन, दिव्य जीवन। और इसी दिव्य जीवन को श्रीमद् भगवत गीता में अनेक प्रकार से कहा है, वेदों में अनेक प्रकार से। इसी दिव्यत्व की प्राप्ति को देवत्व कहते हैं। सबको मनुष्य से देवत्व को अर्जित करना है, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को हमें धीरे धीरे प्राप्त करना है। ये आरोहण है जीवन।
देवत्व, ब्रह्मत्व, ऋषि। निरंतरता के साथ करो। तो कपालभाति, जैसे मैंने कहा 5 प्राणायाम निरंतरता से निष्ठा। ज्यादातर लोग योग से क्या सोचते हैं, बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, वो तो हम करते ही हैं। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये इस पहली सीढ़ी पर ही नहीं टिके रहना, तो निरंतर आरोहण है जीवन का। रोग मुक्त तो होंगे, सब रोगों के साथ, सब क्लेशों से, सब विकारों से, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, अनित्य शुचि दुखनात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, दृक् दर्शन शक्ति रकात्मता अस्मिता सुखानुसे राग दुखानुसे द्वेषा संस्वाई विदुषो तथा रूपो अभिनिवेशा। पंच क्लेशों से मुक्त होना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंच विकारों से मुक्त होना है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप कृष्ण वृत्तियों से मुक्त होना, आत्मवृत्ति में आत्मरति होकर के, आत्मतृप्त होकर के, यस्तु आत्मरति रेवा आत्मतृप्त मानव होकर के जीना। ये है योग की सतत यात्रा। तो मैं देखता हूं कुछ भाई बहन हमारे योग से हृष्ट पुष्ट शरीर बना रहे हैं, वो भी अच्छी बात है ना। योगी का शरीर भी बलवान होना चाहिए, योगी ऐसा होना चाहिए कि उसको देख करके सारी दुनिया योगी बनना चाहे, ऐसा अपना चरित्र बनाओ। लेकिन यही रुकना नहीं है। आइडियल बॉडी, आइडियल लाइफ, आइडियल कैरेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी का भी और कैरेक्टर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आइडियल बॉडी, आइडियल थॉट प्रोसेस, आदर्श शरीर, आदर्श जैसे हमारी बेटियां भजन गाते रहते हैं, कुछ जैसा देव प्रिया जी ने बहुत सुंदर सा भजन लिखा है, हे विश्व नियंता मेरे इस जीवन के सकल विकार हरो, अंतस्थल में शुचिता भर दो, जीवन में ज्योति प्रकाश भर। मेरा जीवन आदर्श बने, मेरे विचार अति उत्तम हो, है विनय प्रभु से बार बार, ऐसा जीवन संचार, ऐसा जीवन बना दो, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कर, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का, ऐसा जीवन हो हमारा आदर्श जीवन। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जीवन आदर्श, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जो महाराज ने आज श्रीमद् भगवद गीता का पूरा लेखन किया हुआ है। तो एक एक अध्याय के एक एक मुख्य पात्र को चुना कि इस अध्याय का तात्पर्य, इसका आदर्श क्या है, आइडियल क्या है। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ है, कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ योगेश्वर कृष्ण स यथा आचरति तथा अस्माभि आचरितव्यम। न केवलम एक एक अध्यायस्य, एक एक श्लोकस्य, एक एक श्लोकस्य एक एक पदस्य, एक एक शब्दस्य आदर्श वर्तते अस्माकं ऋषिणां। तो ऐसे हम जीवन को जिए कि हमारी फिटनेस, हमारा कैरेक्टर, हमारा कंट्रीब्यूशन जो हम जीवन में अचीव करते हैं, सबको स्वस्थ बनना है, सबको समृद्ध बनना है, सबको संगठित बनना है। क्या बोला? स्वस्थ समृद्ध संगठित। कुछ स्वस्थ नहीं, कुछ स्वस्थ है तो समृद्ध नहीं है, सब प्रकार से समृद्धि,
प्रॉस्पेरिटी फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो, इमोशनल भी हो, और दैवी संपत्ति तो होनी ही चाहिए। बिना दैवी संपत्ति के तो धन होता हुआ भी दरिद्र है। यो वागार के एतत् अक्षर अविदित्वा अस्मिन् लोके जीवति याति। मैंने दोनों कर दिया। तात्पर्य जो बिना आत्मज्ञान के दुनिया में जी रहा है वो दरिद्र है, जिसको आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध मतलब दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन, दिस इज एक्सपीरियंस। बिना आत्मानुभूति के जो जीता है वो दरिद्र है। दरिद्र होकर के नहीं जो वागार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति अस्मिन् लोके जीवति सकृपणाः। ये है बात। तो ऐसा आदर्श जीवन हो, हम स्वस्थ बने, समृद्ध बने, सचरित्र बने, पवित्र बने, सब प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और उत्कर्ष पाए जीवन। यह है योग की महिमा। कपालभाति, मैंने कहा बाह्य प्राणायाम, ऊर्ध्वरेता बने, ऊर्ध्वरेता बने, ऊर्ध्वचेता बने, ऊर्ध्वारोहण हमारे आनंद मना है। आमैव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विद्यमानस्य यं कामयतं तम् उग्रं करोमि तं ब्रह्माणं तं विष्णुं तं सुमेधां तं ओ जाने। यो एवं वेद स एवं भवति। यह है सनातन संस्कृति की प्रक्रिया। ऐसे कपालभाति निरंतर करें। बाह्य प्राणायाम 5 बार करें, कम से कम 5 बार। और जिनको गृहस्थ धर्म का और संन्यास धर्म का ठीक से निर्वहन करना है, दोनों के लिए उनको ये अनुलोम विलोम पूरा करना चाहिए। तो मैं कह रहा था आपसे, ये योग, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी विरासत है इस पूरी मानवता के लिए, इस पूरे विश्व के लिए। और मैं कल भी प्रतापगढ़ में हमारे पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हमारे रामचंद्र दास जी वहां पर हमारे जगत गुरु जी महाराज जी ने आशीर्वाद में कथा दी थी। हमारे अनुज रामचंद्र दास जी महाराज जी के जन्मभूमि पर, तो गांव में छोटे छोटे गांव के बीच में, खेतों के बीच में कथा रखी। क्या कमाल। वहां पर भी मैंने कहा सारी दुनिया, रोज में इस बात को शब्दांतर से कहता है। अब ईसाइयत, इस्लाम, कम्युनिज्म, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी दुनिया अब योग धर्म और सनातन धर्म को ही फॉलो करेगी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जीवन पद्धति है। हो सकता है कोई मूंछ कटवा ले, हो सकता है कोई टोपी ओढ़े, हो सकता है कोई कुछ भी कर देता है। नाम नहीं बदलेंगे दुनिया में, काम बदल जाएगा। नाम तो जब हम कोरिया वालों के, चाइना वालों के नाम बोलते हैं तो ऐसा लगता है अष्टाध्यायी और धातु पाठ एक साथ पढ़ रहे हैं। वो उनका है कल्चर ऐसा है। लेकिन
उनके नाम ऐसे परंपरा है उनका एक, वो भी और उसका सम्मान करना चाहिए। हर जैसे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को गौरव देते हैं, ऐसे ही सबकी सांस्कृतिक विरासत को हमें गौरव देना ही चाहिए। लेकिन देखना, थोड़े दिनों में पूरा चाइना, पूरा रसिया, साउथ कोरिया और किंग जोंग का नॉर्थ कोरिया भी योग करेगा, पूरा मिडिल ईस्ट योग करेगा। People are suffering from various diseases, hypertension, obesity, diabetes, liver kidney failure, physical, mental diseases. ये तो सब है ना। What is the solution? योग is the solution. चलो, अनुलोम विलोम तो पूरा कर ही लिया होगा, पूरा यूरोप फॉलो कर रहा है, हर चौथा अमेरिकन अब योग करता है। लोग कहते हैं, लोग संख्या गिनाते हैं, हम ईसाई इतने, मुसलमान इतने, कम्युनिस्ट इतने, पूरी दुनिया में आस्तिक इतने, नास्तिक इतने। मैं थोड़े दिनों में संख्या गिनाने वाला हूं, पूरी दुनिया के 80-90% लोग योगी होंगे, सनातन धर्मी होंगे। योग को फॉलो करता वही सनातन धर्मी। सनातन धर्मी कोई रिचुअल्स नहीं है, न ही लिंगम धर्म से कारण। हम मात्र प्रतीकों को धर्म नहीं मानते, हम तो जो धारण किया जाए जीवन में उसको धर्म मानते हैं। तो योग धारणीय तत्व है, इसलिए पूरी दुनिया योग धर्म को शब्दांतर से इस वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को फॉलो करे। तो ऐसे लंबा अनुलोम विलोम किया करें, लंबा भ्रामरी किया करें। चलो 5 बार भ्रामरी करें। ऐसे अभ्यास करके हम 5 मिनट से लेकर के हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम आदि की प्रॉब्लम होने पर, स्ट्रेस होने पर, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि लंबा कराते हैं। बहुत जबरदस्त ये इंटरनल हीलिंग होती है, उद्गीत। ऐसा अभ्यास तो एक क्षण में अपने आप को हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में प्रतिष्ठित कर सके।
एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का, प्रतिष्ठित होने का, अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। मैं नित्य शब्द बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा शिवो रामो कृष्ण। अपने आप को भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सच्चिदानंद अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के साथ हम एकात्म कर सके, ऐसी हमारी भाव चेतना। और जब ऐसे हम उस परात्पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं और ईश्वरीय प्रेरणाओं के ईश्वरीय ज्ञान के अनुरूप, ईश्वर के विधान के अनुरूप जब हम आचरण करने लग जाते, तब हम स्वयं भगवान के विग्रहवान, धर्म के विग्रहवान रूप होकर सब रोगों से, सब दुखों से मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर जीवन के प्रयोजन को सार्थक करना, जो मैं कह रहा था, योग इज द पर्पज, योग इज द अचीवमेंट, योग इज द यूटिलाइजेशन, योग इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो सांसों के साथ ऐसे थोड़ी देर अंतर्मुखता के साथ ध्यान करना, दृष्टादृश्य मात्र शब्दों के प्रत्यारोप से ओंकार ध्यान गायत्री मंत्र कीजिए। अपने स्वरूप में अपने अधिष्ठान जीना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में ये खाली ध्यान के समय नहीं, हर पल हमारी ये अनुभूति रहनी चाहिए, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ये सारे विकार और बंधन तो हमने अविवेक के कारण से अब स्वयं पर आरोपित किए हुए हैं, ओढ़े हुए। तो ये जो एक मिथ्या आरोपण हमने स्वयं पर किया हुआ है, इससे मुक्त हो जाए। इसी को कहा हृदय ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानान मुक्ति नहीं, ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मने। तो ये आज का अनुष्ठान ध्यान के साथ हमने एक चरण पूरा किया। अब थोड़ी देर आपके साथ सत्संग करेंगे और हमारे आस्था वाले बच्चे समुद्र तट पर प्रस्थान करेंगे। आज इंडिया टीवी का कार्यक्रम समुद्र तट से होने वाला है, इसलिए हाँ, यशपाल सुवर्णा जी जो यहाँ मटके के अच्छे सेवक हैं और पतंजलि के भी साथ उनका बड़ा एकात्म भाव है, तो इनको एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और इन्होंने हमारी भी सेवा की है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, ओहो। तो देवानी जी थोड़ा योगा अभ्यास करेंगी और अब आप इंडिया टीवी पर हम दोबारा मिलेंगे आस्था के स्वास्थ्य साधकों से, और हम तब तक आह्वान करेंगे कि इन आस्था पर योगाभ्यास करते रहें,